So very good morning, students. So we were discussing about the reservoir fisheries. What is reservoir? So reservoir is a man-made impoundment that is created by obstructing a surface flow by erecting a dam of any description. It may be a river or a stream or any water course. So a dam can be created by erecting, we can create a dam of different meaning. Suppose if this is a river, it may be made up of concrete or some other elements like sometime we also create dam by the wooden planks, isn't it? So the next line, it says a reservoir usually mean a man-made lake created by using a dam or barrage to store water. So what is the function of the reservoir? What is the main purpose behind the reservoir formation? Can anyone say? What is the utility of a reservoir? Why we need such kind of reservoir within our Indian continent, if we say? Yes, please. For electricity. Oh, Sir, to store water for irrigation and generating electricity. okay. For power generation and as well as irrigation. Anyone else? Anyone else? So generally, what reservoir do? What is the need? Generally, it was done for the purpose of irrigation, because our continent is deprived of a certain period of time with the flood or either drought, isn't it? So that the water utility or the water availability, to ensure the water availability throughout the year, we have erected a dam. We have imposed this within our continent. Okay. So the thing is, the first one was irrigation. The second one is power generation, isn't it? Hydroelectric power generation. So all of you are well known that how electric generation or electricity generation is done throughout the water flow, or how we use this water current to convert it into electrical energy, mechanical energy into electrical energy. So along with this, now when reservoir comes into the existence, then the question comes, how can we utilize these reservoirs for further purpose? हम लोग और किस किस पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं? एक तो हमारा इरिगेशन एक पर्पस था. पहले भी जब बहुत सारे लोग जब पुराने थे तो क्या करते थे कि तालाब खुदवाते थे या कुआं होता था उनके घर में, जो भी गांव से होंगे, जो शहर से होंगे. तो हमारा जो मेन पर्पस था वो क्या था कि हम ये वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट ईयर मेंटेन रख पाए, isn't it? So that we can irrigate our agricultural land, isn't it? सेकेंड क्या हुआ कि ये कन्वर्सन, अब जहां पर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होती है पॉन्ड में, अभी भी हम लोग सुनते हैं ना कि हम लोग पॉन्ड में रहता है लेकिन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है, एक पीरियड में रहता है और जो नेक्स्ट सीजन रहता है, you are not able to harness those facilities. For that purpose these reservoirs were made. Okay, तो ये रिजर्वायर जो है उस पर्पस के लिए बनाए गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर रिटेंशन जो होता है वो पेरेनियल है, वो थ्रू आउट ईयर जो है ये मेंटेन रहता है. ठीक है, किसी को नींद तो नहीं आ रही हमारे आवाज से? नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है. इसके बाद क्या होता है कि इस तरीके से तालाब या कुआं हुआ, उसी के समकक्ष जो है ये रिजर्वायर हुआ. जब हमारा इरिगेशन के पर्पस के लिए रिजर्वायर बना, फिर ये पता चला कि हम रिजर्वायर का यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो पावर जनरेशन के लिए कर सकते हैं. पावर जनरेशन कैसे? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन. उसमें क्या होता है, जो वाटर का मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, isn't it? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं. फर्दर इस पर डिस्कशन हुआ कि कैसे हम इस रिजर्वायर को और किसी यूज में हम ला सकते हैं. जैसे फिशरीज कंपोनेंट हो गया, जैसे हमारा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर पार्क हो गया, ठीक है, या गेम फिशरीज हो गया.
मतलब ये पर्पस को हम लोग एक्सप्लोर करते चले गए कि हाउ वी कैन यूज बेस्ट टू आवर रिजर्वायर, हाउ वी कैन जनरेट आवर रेवेन्यू फर्दर मोर फ्रॉम दीज रिजर्वायर्स। ठीक है, तो ये आता चला गया कि कैसे हम वाटर पार्क बनाए। जैसे बहुत सारे ऐसे रिजर्वायर है जहाँ पे वाटर पार्क बना हुआ है, जहाँ पे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। फिर गेम फिशिंग भी होती है। गेम फिशिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग एंगलिंग करते हैं, इजंट इट, एंगलिंग करके अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। आप लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट में देखते होंगे, क्विक फिक्स में, कि मतलब किस तरीके से वो एंगलिंग करते हैं और एंटरटेन करते हैं। फॉर दैट दे हैव टू पे, और वो जो पे करते हैं वो रेवेन्यू कहाँ जनरेट होकर के जाता है, तो हमारे गवर्नमेंट के फंड में जाता है, या वट एवर इट इज, आइदर इट मे बी अ स्टेट रेवेन्यू फंड और सेंट्रल रेवेन्यू फंड, इजंट इट। फिर डिस्कशन आता है कि फिर फिशरीज का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो एक तो आपने गेम फिशरीज समझ लिया, सेकेंड वन इज कि हम लोग कल्चर फिशरीज यहाँ पे करते हैं। तो कल्चर फिशरीज क्या, हम रिजर्वायर को प्राइमरी हम कल्चर फिशरीज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं इसको हम फिशरीज पर्पस के लिए यूज करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं। जनरली हम लोग पहले ये पता होना चाहिए कि रिजर्वायर का कितना पार्ट जनरली हम लोग फिशरीज के लिए यूज करते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आना भी चाहिए कि हम रिजर्वायर का कितना पार्ट फिशरीज के लिए यूज करते हैं। आप जब भी कोई रिजर्वायर तुम लोगों में से किसी ने देखा है? यस प्लीज। It is not a class, we are talking with each other, isn't it? So have you seen any reservoir? No, sir. Okay, so you just No, take sir. a look. If you get a chance, you must have a look of a reservoir. कि जब आप रिजर्वायर देखने जाते हो, झारखंड में बहुत सारे रिजर्वायर्स हैं, और आपके यहाँ पर भी जो हम लोग लेक बोलते हैं, ये रिजर्वायर क्या है? ये मैन मेड लेक है। ठीक है, यदि हम लोग लेक और रिजर्वायर के बीच में डिफरेंशिएट करें तो क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है? क्या कोई बता सकता है हमको? पहले मैं आज रिजर्वायर फिशरीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, बट उससे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि लेक और रिजर्वायर में डिफरेंसेस क्या है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लेक एंड रिजर्वायर? कैन एनीवन से? Sir, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट बहुत Lake डिफिकल्ट और टिपिकल क्वेश्चन है। Sir, इवन sir, yes lake please. is a natural water body. Okay, already I have told that. Next point. Lake can be utilized for irrigation purpose, but it is not generally utilized for the power generation purpose, isn't it? लेक जो होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली नेचुरल होते हैं, और ये नेचुरल होते हैं, ये मैन मेड नहीं होता है। ये पावर जनरेशन के पर्पस के लिए भी होता है, इरिगेशन के पर्पस के लिए भी होता है। लेक में कंप्लीट फिशरीज की जा सकती है, लेकिन रिजर्वायर में हम कंप्लीट 100% फिशरीज एक्टिविटी इज नॉट अलाउएबल। कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती है कि रिजर्वायर में हम 100% फिशरीज कल्चर करें। आप लोग जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसको। ये जानना चाहिए आपको कि रिजर्वायर का कितना पार्ट हम फिशरीज के लिए यूज कर सकते हैं। रिजर्वायर का हम लोग 10 to 20% पार्ट ही हम यूज कर सकते हैं फिशिंग एक्टिविटीज के लिए या फिशरीज एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, अब जनरली रिजर्वायर, चूंकि किसी रिवर पे डैम बना करके हम रिजर्वायर बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो डिप्राइव्ड होता है समहाउ। ठीक है, और अब क्यों होता है? उनका एम्प्लॉयमेंट डिप्राइवेशन होता है। उनमें क्या होता है, जो उनका जो रेसिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं उनको डिस्प्लेस किया जाता है। कि सपोज आप रिवर के ऊपर में डैम बांधोगे तो क्या होगा? वाटर विल स्प्रेड थ्रू आउट, इजंट इट? होगा या नहीं होगा? तो होगा। हेलो, कोई आवाज नहीं दे? ओके, यस। तो ये जो वाटर स्प्रेड होगा तो क्या होगा? जो आसपास जो उस नदी के किनारे कोई रह रहे होंगे, तो ये कितना होता है? हेक्टेयर और हेक्टेयर्स में होते हैं। तो बहुत सारे, अभी जैसे फ्लड या बाढ़ आता है तो आप देखते होंगे रिवर किनारे जो भी रहते हैं वहां पे क्या होता है, वो फ्लड इनंडेटेड हो जाता है।
लोग वहां से भाग जाते हैं, है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से जब रिजर्वायर जब अपना वाटर सरफेस एरिया स्प्रेड होगा तो वो क्या होता है, डिस्प्लेस होते हैं। डिस्प्लेस होंगे तो फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती है, कुछ ना कुछ उसके लिए तो करेगी, ठीक है। तो उनको रहने के लिए आवास दिया जाता है। जैसे सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होता है, ठीक उसी तरीके से रिजर्वायर जब भी कोई बनाती है गवर्नमेंट एजेंसी, उसके लिए उससे पहले उनकी व्यवस्था करनी होती है, तभी वो रिजर्वायर फिशरीज करते हैं। 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। ओके ओके, हम थोड़ा क्लास ले रहे हैं, हमको थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। हाँ ओके ओके। देन सेकेंड थिंग कि हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे, यस, reservoir cover more than 1% of the land surface and created mainly for irrigation. It is written over there, then power generation, then other activities, ठीक है। तो इरिगेशन हो गया, पावर जनरेशन हो गया, और ये जो फिशरीज कंपोनेंट वगैरह सब ये क्या है, टर्सरी कंपोनेंट है, ठीक है, जहां से हम फिशरीज एक्टिविटीज करते हैं। यानी 10 to 20% ऑफ द टोटल रिजर्वायर एरिया वी कैन यूटिलाइज फॉर द फिशरीज पर्पस। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जनरली हम लोग केज या पेन कल्चर करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया बाउंडेड होता है जहां पर हम कल्चर कर सकते हैं। रिजर्वायर के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, जब रिजर्वायर कोई बनता है तो उससे हमारा क्या होता है कि जो हम नेचुरल जो रिवर फ्लो होता है उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, और जब छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, जो डाइवर्सिटी होगी, कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी होगी, वो क्या होगी, उस डाइवर्सिटी में चेंजेज आएगा। जो स्टॉक होता है, जो जो आपका नेचुरल पॉपुलेशन स्टॉक होगा, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्या कोई इस पर दे सकता है अपना कोई अपना थॉट बता सकता है कि क्यों ऐसा हो सकता है, हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन शिफ्ट। सोचो, तो कैसे होता है कि जैसे सपोज कोई माइग्रेटरी फिशेस है, ठीक है, दोज माइग्रेटरी फिशेस which need upper strata of water or lower reaches of water for the breeding or feeding purpose, they are obstructed by making this dam, ठीक है। तो यही रीजन होता है रिजर्वायर का। देन देयर आर 19,370 reservoirs are allocated throughout in India that has an area of more than 3 million hectares. Clear? Hello? Yes. sir. Yes, sir. Okay. So already I will discuss this PowerPoint. Already we are going to discuss about the first unit it is going to cover. ठीक है, इसमें है definition of reservoirs in India. Second one is nature and extent of reservoirs. Then topography and species diversity. Then importance of morpho-edaphic index in reservoir productivity and classification. Factors influencing fish production. Then the different trophic phases in reservoir, pre-impoundment, post-impoundment stages, and their significance in establishment of reservoir fisheries. So we are going to cover all these aspects within these PowerPoints. Okay, so be careful and be alert. सबसे पहला तो हम लोग डेफिनेशन यूज कर लिए, डेफिनेशन हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि रिजर्वायर, आप देखो ये एक बहुत बेहतरीन पिक्चर है, ठीक है, एक रिजर्वायर की। रिजर्वायर में जनरली हम लोग जो पावर जनरेशन जब हम करते हैं, जनरली पावर जनरेशन के लिए जो रिजर्वायर यूज होता है उसमें सरफेस फ्लो ऑफ वाटर क्या होते हैं, ये अपसाइड डाउन वो क्या होंगे, गिरते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है जो पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है वो और उसके नीचे में होता है, ठीक है। जो नीचे होता है वो क्या होता है, यानी कि इसमें जो अपर सरफेस वाटर होगा दैट विल फ्लो फ्रॉम दिस बैरेजेस, फ्रॉम दिस, अभी सुनते हैं ना कि इस बैराज से इतना फाटक खोल दिया गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डोर्स हैं जो ओपन किए जाते हैं।
और उसके नीचे जो होते हैं वो आपके जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो व्हील होते हैं वो लगे हुए होते हैं जहां पर पानी गिरती है, और वो व्हील से कनेक्टिविटी रहती है बनी हुई, जो इसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये हुआ सरफेस फ्लो। दूसरा होता है बॉटम फ्लो, यानी कि इसमें ये पूरा पैक रहेगा और नीचे वाला जो बॉटम सरफेस एरिया है, वो बॉटम सरफेस एरिया को मतलब नीचे से सिंपली शिफ्ट कर लिया जाता है, जो गेट है या फाटक है सीधे उठा लिया जाता है लिफ्ट से, ठीक है, और नीचे वाला जो सरफेस लेयर होगा वो क्या होगा, वो जाएगा। तो ये जनरली दो तरह के रिजर्वायर्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं जनरली, यदि क्लासिफिकेशन किया जाए रिजर्वायर का ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिजर्वायर्स। मैं ये क्लास कंटिन्यूटी में रहेगी, नेक्स्ट क्लासेस ये जो पीपीटी है वो कंटिन्यूटी में रहेगी, नेक्स्ट क्लासेस भी। अभी हम देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। मैं जो भी चीज डिस्कस कर रहा हूं आप लोग अच्छे से सुनो, और उसमें कहीं भी कोई डाउट हो यू जस्ट डिस्कस विथ मी। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जैसे आप लोग सुनते होंगे स्मॉल रिजर्वायर्स, मीडियम रिजर्वायर्स, लार्ज रिजर्वायर्स। So already you came to know that reservoirs are the man-made impoundment that is created by erecting a dam against any description that is a river और रिवर हो सकता है, या कोई भी सरफेस फ्लो जो होगा वो हम लोग उसके अगेंस्ट जो बैरिकेडिंग करके बताते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया। सेकेंड क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल रिजर्वायर्स क्या होते हैं, तो इसको रफली जो है रिजर्वायर्स, जो स्मॉल रिजर्वायर्स होंगे, these have an surface area of 1000 हेक्टेयर। जो वाटर स्प्रेड एरिया होगा इसका कितना में फैला होगा, लगभग 1000 हेक्टेयर्स। उसको हम लोग स्मॉल रिजर्वायर्स कहते हैं, ठीक है। 1000 हेक्टेयर तक का जो भी आएगा उसको हम लोग स्मॉल रिजर्वायर बोलेंगे। देयर इज नो देयर नंबर इन कंट्री इज 19,134, यानी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल रिजर्वायर्स जो हमारे इंडिया में है वो कितना है, 19,134। दैट हैज a covering area of 1.48 million hectares। क्लियर। तो इतने तरह के छोटे छोटे रिजर्वायर्स हैं जिनका नंबर 19,134 है, जिनका वाटर स्प्रेड एरिया जो है वो 1.48 मिलियन हेक्टेयर्स है। तमिलनाडु हैज हाईएस्ट एरिया एंड नंबर ऑफ स्मॉल रिजर्वायर्स विथ 8,895 यूनिट्स, that is followed by Karnataka and Andhra Pradesh respectively. Okay, so Tamil Nadu comes first when we discuss about the number of small reservoirs, then it is followed by Karnataka, and next one is Andhra Pradesh. Clear? Any doubt with this? No, sir. No, sir. Then we are discussing about the medium reservoirs. Medium reservoirs are those reservoirs whose area lies between 1,000 to 5,000 hectares. Okay, and the number of medium reservoir is 180. Okay, 180 within India that has a surface covering area of 0.507 million hectare. Clear? And the Madhya Pradesh has the highest area of these reservoirs. Now you just look into it that Madhya Pradesh has highest area of these reservoirs. यदि आपके क्वेश्चन आ जाते हैं JRF में या कहीं पर भी, the highest area of reservoirs located at where? It is Madhya Pradesh, not Andhra Pradesh. If we discuss about the number of reservoirs, then it comes then you have to choose Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Clear? Okay. Yes, sir. Then we will discuss about the large reservoirs.
अब समझ में आया? अब आप लोग ऐसे ही याद कर लो, 1000 हेक्टेयर से कम होगा स्मॉल रिजर्वॉयर्स होंगे। सबसे ज्यादा नंबर कहाँ है? तमिलनाडु में है, उसके बाद कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है। मीडियम रिजर्वॉयर होगा 1000 से 5000 हेक्टेयर के जो बीच में होगा उसको मीडियम रिजर्वॉयर बोलेंगे, ठीक है। हाईएस्ट एरिया कहाँ पे है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्वॉयर, मीडियम रिजर्वॉयर्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, इसका मतलब तुम लोग सीख रहे हो और लिख रहे हो। Then area beyond 5000 hectares is 56 in number, covering an area of 1.6 million hectares. यानी लार्ज रिजर्वॉयर के जो नंबर हैं वो कितने हैं? 56 नंबर है टोटल हमारे इंडिया में, और इनका एरिया कितना है? 1.60 मिलियन हेक्टेयर। और सबसे ज्यादा लार्ज रिजर्वॉयर जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में। बट again Andhra Pradesh has maximum area of these reservoirs, but नंबर कम है, बट एरिया क्या है आंध्र प्रदेश में लार्ज रिजर्वॉयर का? ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? कोई बता सकता है विदाउट गूगल सर्च किए हुए? दैट इज द गोदावरी, है ना। चलो फिर देखते हैं कि लार्ज रिजर्वॉयर्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा लार्ज रिजर्वॉयर्स जो हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में दिखेंगे। नागार्जुना सागर हो गया, श्री साइलम हो गया, सोमाशिला हो गया, ये सब रिजर्वॉयर्स जो हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में है, जो मैक्सिमम आपके लार्ज रिजर्वॉयर्स के जो एरिया है, ठीक है। देन फिर एरिया वाइज देखो अभी कर्नाटका हैज मैक्सिमम नंबर, आंध्र प्रदेश इज मैक्सिमम एरिया, और ये सब जो है बड़े बड़े डैम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नागार्जुन सागर, और सबसे बड़ा, तुम लोग को कभी क्वेश्चन भी आता होगा कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा रिजर्वर भाखड़ा नांगल बांध है, यस सर, भाखड़ा नांगल डैम या हीराकुंड सुनते होगे, ठीक है। तो देयर आर, हीराकुंड कहाँ पे है, भाखड़ा नांगल कहाँ पे है? प्लीज गो एंड वर्क आउट। टुडे आई एम गोइंग टू असाइनमेंट, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे और उस पे बात भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आता है। और हमने बता दिया नाम, अब आप सर्च करो कि भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर बनी हुई है, हीराकुंड जो है वो कहाँ बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में है भी या नहीं है, या एमपी में है, ठीक है। आप वर्कआउट करो, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो लार्ज रिजर्वॉयर्स हैं उनके नंबर हैं, जैसे नागार्जुना सागर हुआ, श्री साइलम हो गया, सोमाशिला हो गया। गोविंद सागर क्या कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश। स्टैनले, अच्छा महाराणा प्रताप सागर लेक भी है, वो कहाँ पे है? वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, ओके। देन स्टैनले रिजर्वॉयर तमिलनाडु, शांति सागर कर्नाटक, मिनी माता हसदेव बांगो छत्तीसगढ़। ये मिनी माता हसदेव बांगो जो है ये एक आदिवासी जो वहाँ के फाइटर थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है छत्तीसगढ़ में,